So, as the topic has been decided that the searching and reviewing of related literature. My dear scholars, my dear friends, you know, even today in my class, when I was giving lecture in MLIC classroom in the department, there we also try to, give an overview about the searching of information. And then we were talking about the research initiatives that a student or a researcher is undertaking. So even if it is a master's level dissertation, PhD, doctoral thesis, or it may be project related research, or any government based scheme whereby research is being conducted. After selecting the topic, after getting the pros and cons and the discussions with your concerned supervisors as well as the experts, you are finally deciding and you are switching towards a particular theme or the topic. So then the first process that starts is the searching of literature and then reviewing the same literature for the topic which you have been selected. So I must say the first topic, decision, and then the second stage is that we are going to discuss today. So note down the questions and queries during the presentation so that we can discuss them at the end of this session. I will be more about detailing and discussing about the practical aspects so that the important databases as well as the search processes can be given the demonstration. Okay. Dear students and dear research scholars, as we all know that we are always talking about the information searching from internet, and every one of us in one way or the other way we are searching different information from internet because it is a reservoir of information where each and every one of us they are striking hard to get maximum information that is relevant to us. So that is in that context, what is the information search process? I perceive as a teacher that it is basically a problem solving activity where you have to understand that there is a cause, there is a concern, there is an issue that has to be sorted out. Until unless a researcher is not able to understand that the kind of search or the topic that we are going to search, it is a problem, it's a concern, then and only then we can sincerely and seriously think about the different keywords, about the different types of these search statements, about the database or the search engine and their features, and our search will be more effective. The effective search is that kind of search where you are putting any keyword, you are using any search statement, and you are getting maximum relevant results. उसी को हम कहते हैं ये सबसे अच्छा सर्च, चाहे वो डेटाबेस के फॉर्म में हो चाहे वो सर्च इंजन के फॉर्म में। तो इसलिए सबसे पहले आप लोग को ये समझना है कि हमेशा जब भी आप कोई टर्म सर्च करेंगे तो आपको उसके लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड रिसर्च करना पड़ेगा कि अगर कोई टॉपिक हम सर्च कर रहे हैं उस टॉपिक पे डिफरेंट प्रॉस एंड कॉन्स क्या हो सकते हैं, हमारा एक सूटेबल कीवर्ड या नंबर ऑफ कीवर्ड्स क्या हो सकते हैं। तब पॉसिबिलिटी ये है कि ज्यादा से ज्यादा आपके जो रिट्रीवल रिजल्ट्स आएंगे वो आपके रेलिवेंट होंगे, टॉपिक के रिलेटेड रेलिवेंट होंगे। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये टॉपिक है जो हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट बेसिकली इट इज अ सर्वे ऑफ स्कॉलरली पब्लिकेशंस। Once you have decided and you have a particular theme or a topic, then surveying the existing stock of literature which is available on that particular topic is important. So that is at that time you have to understand that the scholarly publications that are in the form of journals, journal articles, books,
book volumes, conference proceedings, editorials. Okay, so then these are the scholarly communication where the research based content is being published. So we have to survey that, but that survey should be always comprehensive. It should be exhaustive. It should not be limited to certain databases. It should be limited to almost major databases as well as major search engines. Then and only then you can be in a position to know the existing or the actual stock of knowledge which is available on a particular research topic. Okay. What are the important reasons whereby we are able to conduct the research and the literature review? You can go through the slides. I will share the PowerPoint with the organizers of the program. What I personally perceive is that the literature review is familiarization or awareness about the existing stock of knowledge. Second thing is that the duplication of research can be easily identified. Then it also helps out to design and develop the theoretical framework and methodology. देखिए, जब भी हम रिसर्च कर लेते हैं तो हमारे जहन में बहुत सारे सवालात होते हैं. सबसे बड़ा एक सवाल ये होता है कि हम इस पर्टिकुलर टॉपिक पे कौन सी मेथोडोलॉजी अडॉप्ट करेंगे, किस तरीके से हम लोग इस स्टडी के ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करेंगे. और आप लोग अगर रिसर्च लिखते हैं, आर्टिकल्स लिखते हैं, तो आपको ये पता चला होगा कि बहुत अहम रोल है मेथोडोलॉजी का. द वे इन विच यू आर कंडक्टिंग द रिसर्च, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ए मेथोडोलॉजी. एंड देयर आर डिफरेंट मेथोडोलॉजीज इन डिफरेंट स्ट्रीम्स ऑफ नॉलेज. सोशल साइंस का अलग है, आर्ट्स का अलग है, ह्यूमैनिटीज का अलग है. तो जब आप लिटरेचर रिव्यू करते हैं तो आप रिसर्च में आपको अपने रिसर्च के बारे में ये पता चलता है कि हमारे लिए कौन सा रास्ता सही है, कौन सी मेथोडोलॉजी सही है. ये भी इससे फायदा मिलता है हमें. और इसके अलावा जो की फाइंडिंग्स है, बाकी लोगों ने जो रिसर्च किया है उसी पर्टिकुलर टॉपिक पे, उसी एरिया पे, यू आर ऑल्सो गेटिंग एन ओवरव्यू अबाउट दैट कि उस पर्टिकुलर थीम में बाकी रिसर्चर्स ने क्या क्या फाइंडिंग्स ड्रा करी है, ताकि आप उन्हीं फाइंडिंग्स के बेसिस पे फर्दर रिसर्च करें. सो दीज आर द रीजंस यू माइट बी नोइंग दैट. उसके बाद आपको याद रखना है कि व्हाट इज द a normal format of a particular literature review. इसमें हम 3 हिस्सों में ब्रॉडली कैटेगराइज करते हैं. एक तो ये है कि इंट्रोडक्शन, दूसरा बॉडी ऑफ द लिटरेचर रिव्यू, एंड थर्ड इज द कंक्लूजन. अब इन 3 हिस्सों में हम लोग नॉर्मली डिजाइन करते हैं लिटरेचर रिव्यू, लेकिन ये फॉर्मेट कभी कभी वेरी होते हैं. कुछ लोग क्या कर लेते हैं कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखते हैं, उसके बाद बॉडी. लेकिन कंक्लूजन और गैप आइडेंटिफिकेशन जिसको हम कहते हैं, कंक्लूजन या गैप आइडेंटिफिकेशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दैट कंक्लूजन और द गैप आइडेंटिफिकेशन विल सिंपली टेल द रीडर और अदर रिसर्चर्स दैट what is left out by the other earlier researchers that our study is conducting or has given new findings. Because until and unless the earlier literature and the literature or the study that you are conducting, there should be kind of validity. तो उस वैलिडिटी से हमें कब पता चलता है, जब आपको ये पता चले कि अभी तक ये सिचुएशन थी, ये लिटरेचर हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा था, लेकिन उस लिटरेचर के बाद हमारा जो लिटरेचर, हमारा जो स्टडी है, वो इसको किस तरीके से कंट्रीब्यूट करता है, वो हम कंक्लूजन में लिखते हैं. अब उसके बाद बॉडी की जो बात आती है, देयर आर 4 ब्रॉडर कैटेगरीज जो आप लोग भी जानते होंगे. इसको हम फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे आगे स्लाइड्स में. एक तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, जो डेट वाइज हम लोग एक एक आर्टिकल का, एक एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट का रिव्यू करते हैं, डेट वाइज उसको अरेंज करते हैं. तो ये अरेंजमेंट की बात है कि जो आप एक एक एंट्री बनाएंगे, एक एक पर्टिकुलर आर्टिकल या एक एक रिसोर्स की का जो समरी आप लिखेंगे, वो अरेंजमेंट उसका होगा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. दूसरा है कि जो आपका एरिया है रिसर्च का, उसमें हम ब्रॉडर थीम्स डिजाइन करते हैं.
तो ये डिपेंड करता है कि हाउ मेनी वेरिएबल्स देयर आर इन ए पर्टिकुलर एरिया ऑफ स्टडी, और उसमें हम ब्रॉड थीम्स में डिवाइड कर लेते हैं। उन थीम्स के बेसिस पे लिटरेचर सर्वे करते हैं और उन थीम्स के बेसिस पे फिर लिटरेचर को डिजाइन कर लेते हैं। उसके बाद है मेथोडोलॉजिकल, जहां पे हम लोग क्या कर लेते हैं, वी आर मोर कंसर्न अबाउट द डिफरेंट रिसर्च मेथड्स which have been conducted by other researchers, so that on the basis of those methodological methods which other researchers have adopted, we are designing our methodology. और जो लास्ट वाला है दैट इज द थ्योरेटिकल, जहां पे जिसको हम कहते हैं सिंथेसाइज फॉर्मेट, जहां पे सिंथेसिस होती है। एक जो आपका टॉपिक है, उस टॉपिक में हम लोग क्या कर लेते हैं, कई सारे लिटरेचर जो हम पढ़ते हैं या रिव्यू करते हैं, उनको एसिमुलेट कर लेते हैं, उनको कंबाइन कर लेते हैं, सिंथेसाइज कर लेते हैं, सो दैट वी कैन जस्टिफाई आवर आर्ग्यूमेंट। ओके, वी विल डिस्कस देम इन डिटेल। और लास्ट में रेफरेंस लिस्ट, बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट टू गिव द प्रॉपर साइटेशन एंड अ प्रॉपर रेफरेंस लिस्ट एट द एंड ऑफ द चैप्टर, इंक्लूडिंग द लिटरेचर रिव्यू। तो मेरे ख्याल से आपके जो बाकी सेशंस होंगे, हो सकता है वो साइटेशन स्टाइलिस्ट पे हो। और इसमें रेफरेंस लिस्ट में आप ये याद रख लीजिए, हमारे पास बहुत सारे स्टाइल्स हैं जो कॉमनली हम लोग सोशल साइंस में यूज करते हैं, दैट इज एपीए स्टाइल। उसके अलावा हमारे पास एमएलए स्टाइल भी है, मिचिगन स्टाइल भी है, हार्वर्ड स्टाइल है, जिसके बेसिस पे हम साइटेशन जो विद इन टेक्स्ट में हम लोग कोट कर लेते हैं ऑथर का सरनेम और ईयर, और उसके बाद जो रेफरेंस बनती है वो उस पर्टिकुलर आर्टिकल की तमाम डिटेल्स होती है। उसमें क्या क्या होता है, ऑथर का पूरा नाम होते हैं, ईयर ऑफ पब्लिकेशन होता है, जर्नल का नाम होता है, आर्टिकल का टाइटल होता है, वॉल्यूम, इश्यू, पेज नंबर। इसके अलावा अगर वो ऑनलाइन अवेलेबल है, उसका डीओआई नंबर या यूआरएल नंबर देते हैं। तो ये रेफरेंस लिस्ट हम इस तरीके से प्रिपेयर करते हैं। ये स्क्रीन और ये स्लाइड आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप रिसर्च सब लोग एनरोल्ड हैं, आपको टॉपिक मिले हैं, तो आपको जो 6 एस्पेक्ट्स यहां लेफ्ट साइड में दिख रहे हैं, कैन यू सी, कैन यू रीड देम? यस सर। यस सर। जैसे पहला क्या है, टॉपिक सेंटेंस, ठीक है। दूसरा है पाइवोटल स्टडी, तीसरा है क्रिटिकल इवैल्यूएशन, उसके बाद फोर्थ है थ्योरी, जिसको थ्योरेटिकल रिसर्च कहते हैं, उसके बाद सिंथेसिस, उसके बाद गैप। तो ये जो एस्पेक्ट लेफ्ट साइड आप देख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि जिस टाइप की स्टडी है, बिकॉज सोशल साइंस में अलग अलग सब्जेक्ट्स में भी अलग अलग तरीके से स्टडीज कंडक्ट की जाती, तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपका जो एरिया ऑफ कंसर्न है, आपकी जो स्टडी है, वो किस में लाई कर रही है। उसके बेसिस पे यहाँ पे राइट साइड में एग्जाम्पल है। जैसे फॉर एग्जाम्पल टॉपिक सेंटेंस है, जिसमें एक्सप्रेसेस द टॉपिक एंड सेंट्रल पॉइंट ऑफ योर पैराग्राफ। तो एग्जाम्पल के तौर पे कैसे, मेनी स्टडीज हैव फोकस्ड, फिर आप उनकी साइटेशन देंगे। सिमिलरली जैसे क्रिटिकल इवैल्यूएशन, इवैल्यूएट स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस ऑफ दैट स्टडी। तो आप किसी स्टडी या किसी आर्टिकल को आप असेसमेंट कर लेते हैं, उसको इवैल्यूएट कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे, हाउएवर इन द एरा ऑफ रैपिडली इवॉल्विंग डिजिटल टेक्नोलॉजीज द मास मीडिया पैराडाइम इज नो लॉन्गर सफिशिएंट, मींस यू आर असेसिंग द मास मीडिया पैराडाइम, ठीक है। सिमिलरली एस्पेक्ट एक साइड में है तो और उसकी एग्जांपल आपको मिल जाएगी। जैसे सिंथेसिस आप देख लीजिए, अक्सर हमारे यहाँ एकेडमिक्स में जो यूनिवर्सिटीज में रिसर्च कंडक्ट किया जाता है, उसमें सिंथेसाइज किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा, कंबाइनिंग मल्टीपल स्टडीज टू सपोर्ट आवर आर्ग्यूमेंट, टू सपोर्ट आवर आवर थ्योरी। तो इसमें एग्जांपल के तौर पे जैसे हम लोग क्या लिखते हैं, सेवरल एम्पिरिकल स्टडीज हैव फोकस्ड ऑन, फिर उसकी साइटेशन देते हैं, ठीक है। और जिस जिस वेरिएबल को उन्होंने डिस्क्राइब किया, उस वेरिएबल को हम कंजक्शंस के साथ, कॉमा के साथ ज्वाइंट कर लेते हैं। that is called the synthesize. Okay, so these are different 6 broader aspects, and on the right side there are some examples you can go through later on. I am trying to save my time for the demo. Okay, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूं ताकि आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट जो है वो मैं आपको डिलीवर करूं। Now we will see how we are going to write the literature review. तो सबसे पहला काम क्या है, सर्चिंग। देखिए, रिव्यू लिखना मेरे हिसाब से
that is also very important. One has to be, much more skill in assessing and synthesizing the proper literature review. लेकिन उससे पहले जो important है वो ये है कि how we are going to search relevant literature on our topic. जो हमारा टॉपिक होगा उस टॉपिक पे relevant literature, जो existing resources हमारे पास है. आप किसी कॉलेज में होंगे, आप किसी यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन होगा, ठीक है, आप किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट में होंगे, तो सबसे पहले जो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज हैं, क्या हमारे तमाम एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज में लिटरेचर जो हमें मिला, डू वी हैव दैट काइंड ऑफ लिटरेचर विद अस? तो सर्च इज वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ वी आर गोइंग टू सर्च. ठीक है, बाद में बाकी काम बाद में है कि जब आप इसको अपने सिस्टम पे सेव कर लेंगे, फोल्डर्स बनाएंगे, थीम्स के हिसाब से डिजाइन करेंगे, देन यू आर गोइंग टू रीड देम, analyze them, understand them, then you will assess them, then you will design a methodology. क्या thematic बनाएंगे, discussion वाला बनाएंगे, फिर उसके बाद identify करेंगे gaps, ठीक है, फिर उसको structure करेंगे, then you are going to write. Broadly जो है 5 steps में हम इसको डिस्क्राइब करेंगे कि एक रिव्यू कैसे लिखना है हमें. सब लोग स्क्रीन देख रहे हैं? यस सर. ओके सर, यस सर. थैंक यू वेरी मच. तो सबसे पहले क्या है, सर्च फॉर रेलेवेंट लिटरेचर. वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा बहुत सारे डेटाबेसेस के जरिए और गूगल पे भी दिखाऊंगा. इवैल्यूएट एंड सिलेक्ट सोर्सेस. दूसरा है असेसमेंट. हमें ये डिसाइड करना है कि जो आर्टिकल हमें मिला है, क्या वो आर्टिकल स्कॉलरली आर्टिकल है, पर्टिकुलर एक्सपर्टाइज ने लिखा है, उसकी पब्लिकेशन कौन सा है, पब्लिशर कौन सा है उसका, बिकॉज दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. बिकॉज आजकल हमारे पास सोशल मीडिया है, तो सोशल मीडिया के जरिए अगर किसी ने आर्टिकल लिखा एंड देन ही और शी हैज अपलोडेड इट इन हिज और हर प्रोफाइल, तो प्रोफाइल से आपको कोई आर्टिकल मिला, दैट इज नॉट अ स्कॉलरली कम्युनिकेशन बिकॉज इट हैज नॉट बीन पब्लिश्ड. किसी ने ब्लॉग बनाया, किसी ने विकिपीडिया में आर्टिकल लिखा, किसी ने और एडिटेड फॉर्म, हमारे पास बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जो फ्री वेबसाइट्स हैं जिसमें लोग अपना कंटेंट क्रिएट करते हैं. So everything is not scholarly. So you have to judge, you have to decide, and you have to, get the details of that particular article. Then you have to identify the themes of your study, debates what has been discussed in those studies, and then identify the gaps in your literature. Outline the literature structure, जिसमें आप जो रिव्यू आप करेंगे जितने सारे आर्टिकल्स, उनको आप फिर उनको डिफरेंट थीम्स के बेस पे डिसाइड करेंगे या थ्योरेटिकल बेस पे. Then you are going to write. अब जैसे पहला स्टेप है, पहले स्टेप में क्या करना है आपको, सर्च फॉर रेलेवेंट लिटरेचर. उसमें वी हैव टू जॉट डाउन डिफरेंट टाइप्स ऑफ दीज कीवर्ड्स. अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ये कहेंगे कि सर ये कीवर्ड्स हम कैसे लिस्ट डाउन करेंगे. उसके लिए मैं ये कहता हूं कि आप सबसे पहले अपनी स्टडी के वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई कर लीजिए, और आप अपनी स्टडीज के जो वेरिएबल्स आइडेंटिफाई कर ले, वेरिएबल्स आइडेंटिफाई करने के बाद आप ये देखिए आपकी स्टडी किसके रिलेटेड है, वो रिलेटेडनेस आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी, और उसके बाद आपको कीवर्ड्स डिजाइन करने पड़ेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल मेरा जो सब्जेक्ट है वो है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस. अब मेरी एक स्टडी है यूजर सेटिस्फेक्शन एंड बिहेवियर ऑफ यूजर्स इन सीकिंग इंफॉर्मेशन इन एनी एकेडमिक लाइब्रेरी. कोई भी एग्जांपल के तौर पे आप किसी भी लाइब्रेरी की एग्जांपल दे सकते हैं कि यूजर सेटिस्फेक्शन और यूजर सीकिंग इंफॉर्मेशन सीकिंग बिहेवियर ऑफ यूजर्स. तो मुझे आइडेंटिफाई करना है, इसमें एक लाइब्रेरी है, इसमें एक हमारे यूजर का बिहेवियर है, उसमें उसकी सेटिस्फेक्शन है. तो उसके बाद क्या करेंगे हम कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ दीज जो कीवर्ड्स हैं वो आइडेंटिफाई करेंगे कि जैसे यूजर सेटिस्फेक्शन, क्या सुटेबल टर्म यूजर सेटिस्फेक्शन है या सेटिस्फेक्शन ऑफ द यूजर्स है, ठीक है. उसके बाद हाउ यूजर्स आर देयर इज अ परसेप्शन, देयर इज अ स्केल फॉर दैट हाउ ए पर्सन इज सेटिस्फाइड. तो सेटिस्फेक्शन के लिए कौन से स्केलिंग पॉइंट्स हैं. सिमिलरली बिहेवियर आइडेंटिफाई करने के लिए कौन से हमारे पास एस्पेक्ट्स हैं जिससे हम बिहेवियर स्टडी कर लेते हैं. उसके बाद देन यू हैव टू गिव द लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स, ताकि जब भी आप सर्च करेंगे वो कीवर्ड्स आपके जहन में हमेशा हो, सो दैट यू आर गेटिंग मैक्सिमम रेलेवेंट लिटरेचर. इंटरनेट पे बहुत सारी चीजें हैं,
लेकिन अहम चीज क्या है, द रिलेवेंट पार्ट विच इज ऑफ योर कंसर्न। और उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे मैंने पहले ही कहा कि अगर आप कॉलेज में है, यूनिवर्सिटी में है, तो आपको क्या करना है, वहां की जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनको आपको सर्च करना है स्टार्टिंग। जैसे लाइब्रेरी कैटलॉग मैंने लिखा है, लाइब्रेरी कैटलॉग का मतलब अवेलेबल रिसोर्सेज। जैसे हमारे यहाँ स्कोपस है, हो सकता है आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स हो जिनके पास स्कोपस अवेलेबल ना हो, वेब ऑफ साइंस अवेलेबल ना हो, साइंस डायरेक्ट अवेलेबल ना हो, है ना। तो इसी तरीके से डिपेंड करता है कि किस जगह पे आप रहना, पहले उस एग्जिस्टिंग लिटरेचर को देखा जाए, वहां पे कितना अमाउंट ऑफ लिटरेचर मेरे एरिया में अवेलेबल है। और उसके बाद चाहे जे गेट है ना, जे स्टोर है। दूसरे स्टेप में असेसमेंट, जैसे हमने कहा था कि आपको डिसाइड करना है, आपको यू हैव असेस कि विच काइंड ऑफ आर्टिकल दैट यू हैव गेट फ्रॉम एनी सोर्स, व्हाट क्वेश्चन और प्रॉब्लम इज द ऑथर एड्रेस, what are the key concepts, what are the key theories, does the research have any innovative approach। ये सब पैरामीटर्स हैं जिस पैरामीटर्स के बेस पे आप एक आर्टिकल को, आप एक पर्टिकुलर पब्लिकेशन को एसेस कर सकते हैं कि ये हमारे लिए रेलिवेंट है या नहीं। और उसके बाद थीम्स, डिबेट्स एंड गैप्स आइडेंटिफाई करना है आपको तीसरे स्टेप में। उसमें क्या करना है, ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स। कभी कभी क्या होता है कि अगर हमारे पास नॉलेज कम है उस टॉपिक पर जो हमने टॉपिक लिया है, या हमने इतना लिटरेचर पढ़ा नहीं, तो जाहिर सी बात है वी आर नॉट एबल टू कंप्रेहेंड और अंडरस्टैंड व्हाट आर द रीसेंट ट्रेंड्स दैट आर गोइंग ऑन। तो उसके बाद जब लिटरेचर सर्वे कर रहे थे, लिटरेचर सर्वे से ही हमें पता चलता है कि व्हाट आर द न्यू थिंग्स, न्यू कंसर्न्स एंड इश्यूज विच आर गोइंग ऑन इन द फील्ड ऑफ आवर कंसर्न। ठीक है, थीम्स, क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट्स, डिबेट्स, डिस्कशंस। अगर कोई टेक्नोलॉजी है उसकी इंप्लीमेंटेशन में क्या कंसर्न्स, उसके इंप्लीमेंट से क्या फायदे हैं, उसका कितना बजट होगा स्पेंड, उसकी ट्रेनिंग के लिए वेयर वी हैव टू डू to get the training for the staff. So it every time you have to decide based on your topic. Then very important concern is the gaps. अब आजकल जैसे मैंने एक दो प्रोजेक्ट्स किए हैं, अभी मैं एक प्रोजेक्ट कर रहा हूं, तो द फंडिंग एजेंसीज आर आस्किंग यू दैट मेंशन द गैप वायर बाय vis-a-vis द वैलिडिटी ऑफ योर रिसर्च। अभी तक जो अवेलेबल एग्जिस्टेंस ऑफ लिटरेचर है वो क्या है, और आपकी स्टडी उस पर्टिकुलर गैप को कैसे फिल करेगी। अक्सर हम लोग देखते हैं कि रिसर्च स्कॉलर्स इस चीज पे ध्यान नहीं देते कि दे आर नॉट मोर कंसर्न अबाउट द फिलिंग ऑफ द गैप, हाउ योर स्टडी इज गोइंग टू फिल द गैप विच इज एग्जिस्टिंग इन द लिटरेचर। तो पहले तो गैप आइडेंटिफाई करना ही एक अहम चीज है। देन यू हैव टू give the solution for that particular gap, how that our topic or our PhD or our research is going to fill that. Then the fourth step is outline your literature review structure, जिसमें हमने कहा था कि पहले भी डिस्कस किया था, chronological, thematic, methodological and theoretical। इसमें आपको डिसाइड करना है कि किस बेसिस पे आप अपने लिटरेचर रिव्यू को ऑर्गेनाइज करेंगे। ओके, then the writing stage when you are going to write the literature review, तो उसमें क्या करना है आपको, summarize, summary and synthesize, where everything is not important in the article। और अक्सर हमने ये देखा है कि जो स्टूडेंट्स हैं, स्कॉलर्स हैं, वो एब्स्ट्रैक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर आर्टिकल पढ़ते हैं। आपको खुद भी पता है जब आप आर्टिकल लिखते होंगे तो abstract is a gist of the particular article, but it is not covering every aspect of the study। इसलिए हम स्टूडेंट से कहते हैं abstract will give you an idea about the article, but you have to go to the details of the article so that properly you are able to understand what is written, what variable has been covered, what kind of findings the study is providing, the methodology, the way the objectives have been fulfilled. So then and only then you can summarize, you can synthesize in your own words. It is not the summary or the abstract which is available in the article itself. Okay. Then analyze and interpret. अक्सर क्या कर लेते हैं हम लोग, ये सोचते हैं कि पैराफ्रेजिंग इज आवर जॉब,
we have to change the language, we have to change the synonyms and antonyms. But dear students, it is not the review of literature. You have to interpret, you have to, give justification to your arguments based on the existing literature. If you have any argument, and then only then you have to describe and you have to justify based on the existing literature. It is not something the, changing the language. It is not something that you are using different types of these tools like Grammarly or Quillbot to change or paraphrase the language. It is proper interpretation, proper explanation, proper justification. Okay. Then critically evaluation via the strengths, weaknesses of the existing literature as well as your strengths and weaknesses that sometimes we are mentioning as a limitation of the study. You have to discuss. Then in conclusion, that I have already told that you have to justify your study based on the gap which has been there in the literature and how your study is going to fill that gap. It is giving the significance already. अच्छा, हम लोग क्या कर लेते हैं, सिग्निफिकेंस कभी कभी इम्प्लीकेशन या सिग्निफिकेंस अलग लिखते हैं, लेकिन आप ये सोचिए अगर आप लिटरेचर रिव्यू में कंक्लूजन में प्रॉपरली एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ऑलरेडी ये स्टॉक ऑफ लिटरेचर अवेलेबल है, उसमें ये प्रॉब्लम्स हैं, ये चीज कवर हुई है, ये चीज कवर नहीं हुआ है, तो इट ऑटोमेटिकली गिव्स द वैलिडिटी एज वेल एज सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी. उसका वैल्यू इससे बढ़ जाता है क्योंकि आप इस चीज को बता रहे हैं कि ये चीज कवर हुई है, ये चीज एक्सप्लोर हुई है, लेकिन ये चीज एक्सप्लोर नहीं हुई जो हमारी स्टडी करने जा रही है. ठीक है. देन द रेफरेंस लिस्ट. So I have cut it very short so that I will give you the more demo about these kinds of these resources which our Aligarh Muslim University is having, so that you can came to know that how we are going to search the literature and then later on review that. Okay. अच्छा, इसमें से आपके पास, आप में से कोई बताएगा कि कौन कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल है आप लोगों के पास? जैसे ये तो एकेडमिक सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, गूगल स्कॉलर, इसमें स्कोपस, वेब ऑफ साइंस, जे स्टोर. कैन यू प्लीज से? हेलो. Yes, sir. At EFL we have access to JSTOR. इसमें से कौन कौन सा रिसोर्स आप लोगों के पास अवेलेबल है? In our Pondicherry, all the resources are available. Okay. Sir, ResearchGate. JSTOR, JGate. ResearchGate. Okay. So So in Hyderabad, it's Google Scholar, ResearchGate, and JSTOR. Both three we are using. in your university, Hyderabad, na? Yes, sir. Yeah. Yes, that is again a central university, so you might be having bulk of these resources. Exactly, sir. Yeah. Yes, yes. But my dear students, I will just try to give the demo of that. Sometimes if it is not available in your university, you can go for literature survey. You can go for material survey to any other university where these resources are available. Okay. So let us first start with the Scopus. Sir, how we will access some of these sir, reviewing and searching sir journals if in our university is not accessible for this? Can you please a bit louder? थोड़ा सा जोर से बताइए.
सर उसका क्वेश्चन यही था कि अगर यूनिवर्सिटी में एक्सेस नहीं रहेगा कुछ हाँ, हाँ। फीड या फिर कुछ स्कॉलर तो कैसे एक्सेस करेगा, शायद आई थिंक वो वही पूछना चाह रहा था। अच्छा, बहुत ठीक स्लो था। देखिए बशीर, मैं आपको ये बताऊं कि आपको पता है कि रिसर्च में, खासकर पीएचडी में, हमारे यहाँ डेटा कलेक्शन के लिए लोग जाते हैं। तो डेटा कलेक्शन या मटेरियल कलेक्शन के लिए भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को अलाउ किया जाता है। उसमें फॉर्मली आप लेटर लिख सकते हैं, आपको आपके सुपरवाइजर के जरिए चेयरपर्सन आपको लेटर लिख के देगी। जहां ये रिसोर्स अवेलेबल है वहां आप टेम्पोरेरी मेंबरशिप ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी कॉलेज में हैं, अब वहां से आप एक चेयर अपने सुपरवाइजर के जरिए लेटर लिखेंगे, चेयरपर्सन आपको अलाउ करेगा। उसके बाद हमारे यहाँ आप मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी में, जो हमारे यहाँ सेंट्रल लाइब्रेरी है, उसमें आप टेम्पोरेरी मेंबरशिप एज पीएचडी स्टूडेंट ले सकते हैं। वो 1 महीने का है, 2 महीने का है, 3 महीने का है। सो ऑन दैट बेसिस यू विल बी गेटिंग ऑल द रिसोर्सेज विच आर प्रोवाइडेड बाय एनी लाइब्रेरी। जैसे आप सर्वे करते हैं, ऐसे ही आप मटेरियल कलेक्शन के लिए भी किसी भी जगह जा सकते हैं, है ना। दैट इज द ओनली पॉसिबिलिटी। और दूसरा ये होता है कि जहाँ पे हमारे यहाँ, जैसे हमारे मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी में, जहाँ पे मैं अलीगढ़ में हूँ, तो वहाँ हम रिमोट लॉगिन देते हैं। रिमोट लॉगिन का मतलब ये है कि अगर इफ यू आर द रजिस्टर्ड मेंबर ऑफ ए पर्टिकुलर लाइब्रेरी, देन लाइब्रेरी विल प्रोवाइड यू द यूजर नेम एंड पासवर्ड which you can use at any place, at your own homes and houses, at any state, so that you can log in using those credentials, and then you can access all the resources which are subscribed by a particular library, है ना। कोविड के टाइम पे बहुत यूज हुआ है रिमोट लॉगिन। तो हमारे यहाँ रिमोट लॉगिन सर्विस भी अवेलेबल है, लेकिन उसके लिए भी मेंबरशिप लेना जरूरी है। लेकिन अगर आप एज ए स्टूडेंट हैं, अगर आप रिसर्चर हैं, तो जो मैंने आपको कहा था कि आपको चेयरपर्सन के जरिए एक लेटर मिल सकती है, जिसके बेसिस पे आपको टेम्पररी मेंबरशिप किसी भी जगह मिल सकता है। ठीक है Sir, okay, sir. Thank you so much for kind you. ओके। इज द स्क्रीन विजिबल? Yes, sir, visible. ओके, थैंक यू। अच्छा, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे अपना टॉपिक बता दीजिए, ताकि मैं इसमें सर्च कर लूं। और अगर आपके पास टॉपिक नहीं है तो मैं फिर खुद सर्च कर लूंगा कोई टॉपिक। देखिए, ये हमारे पास स्कोपस का इंटरफेस है। तो स्कोपस में हम, अगर मैं पूरा बताऊं तो इसमें काफी टाइम लगेगा, लेकिन मैं आपको बस सर्चिंग दिखाऊंगा कि लिटरेचर सर्वे कैसे आपको करना है। ये डॉक्यूमेंट सर्च कहलाती है, जिस सर्च में हमारे पास एक पब्लिकेशन हम सर्च करते हैं, आर्टिकल सर्च करते हैं, बुक चैप्टर सर्च करते हैं। ठीक है। और दूसरा हमारे पास जो सर्च है, उसको हम ऑथर सर्च कहते हैं। अगर आपको अपना प्रोफाइल देखना है, अगर आपके पब्लिकेशंस हैं जो स्कोपस इंडेक्स्ड हैं, या आपको किसी और रिसर्चर का पता करना है कि उनके कितने पेपर्स पब्लिश हैं, तो आप यहाँ पे उनका लास्ट नेम और फर्स्ट नेम दे सकते हैं। और साथ में आप एफिलिएशन ऐड करेंगे। अगर आपने लिखा फॉर एग्जांपल शोएब लिखा आपने, तो शोएब के साथ आपको लिखना है कि यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। ठीक है। तो सिमिलरली, ताकि आप उसी पर्सन का, उसी रिसर्चर का प्रोफाइल सर्च कर सकते हैं। तो ज्यादातर इसमें बेटर ये रहता है कि ऑर्चिड आईडी आजकल सब लोग जनरेट करते हैं, रिसर्चर्स। तो अगर ऑर्चिड आईडी है तो तब आपको एप्लीकेशन लिखने की जरूरत नहीं। और उसके बाद रिसर्चर डिस्कवरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट सर्च है आप लोगों के लिए, कि अगर आपको अपने एरियाज में आपको ये देखना है कि करंटली व्हाट इज गोइंग ऑन इन आवर फील्ड, और इसके साथ साथ आपके जो रिसर्चर्स हैं, जैसे आप फेसबुक पे या बाकी सोशल मीडिया पे अपने फ्रेंड्स बनाते हैं, वैसे ही इसमें आप कोलेब्रेशन बाकी रिसर्चर्स के साथ जो आपके सिमिलर फील्ड्स में, सिमिलर इंटरेस्टेड एरियाज में, इंडिया से बाहर अवेलेबल है, सो दैट यू कैन मेक ए कोलेब्रेशन ऑफ एनी काइंड ऑफ रिसर्च वेंचर। ठीक है, रिसर्च प्रोसेस के लिए। क्योंकि कोलेब्रेशन से रिसर्च की जो का इम्पैक्ट है, क्वालिटी, वो बहुत बढ़ जाती है, बिकॉज यू आर हैविंग मल्टीपल पूल ऑफ experts from different parts of the country, and then they are working on particular area, and the researches are much more qualitative. और उसके बाद फोर्थ वाली जो सर्च है, दैट इज एफिलिएशन सर्च। अगर आपको किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का, रिसर्च इंस्टीट्यूट का प्रोफाइल आपको स्टडी करना है कि उसका कितना लिटरेचर पब्लिश हुआ है, तब आप ये एप्लीकेशन सर्च करते हैं। जैसे मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी लिखता हूं, तो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के जितने सारे पब्लिकेशंस स्कोपस में इंडेक्स्ड हैं, वो मेरे पास सर्च होंगे।
ठीक है। लेकिन चूंकि हमारा टॉपिक है लिटरेचर रिव्यू और सर्वे, इसलिए मैं डॉक्यूमेंट सर्च आपको दिखाऊंगा। बताइए कोई टॉपिक, या मैं खुद सर्च कर लूंगा? सर एक्चुअली देयर आर सो मेनी टॉपिक्स, बहुत सारे ने लिखा है कि इको क्रिटिसिज्म, सिल्वी रॉक, मास स्ट्रेंथ, लिटरेचर, एवोल्यूशन ऑफ पीटी, टीडीएस, सो एनीवन यू कैन प्लीज गो थ्रू। नहीं, आपको पूरा बताना पड़ेगा। अगर मैं कोविड लिखूं, कोविड क्योंकि मेरे ख्याल से ये कॉमन टॉपिक है जो सब लोग समझ पाएंगे। Sir, what has Jaid has written, I think, society, culture, and administration during the reign of Sur dynasty. Society, culture, and administration during the reign of Sur सोसाइटी, dynasty. प्लीज हेल्प मी। सोसाइटी, So it is written society, culture, सोसाइटी, कल्चर and administration एंड एडमिनिस्ट्रेशन during the reign of Sur dynasty. Sur dynasty की समयकाल में जो सोसाइटी कल्चर थी उसके बारे में। सोसाइटी, कल्चर एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन, Administration during the ओके, ड्यूरिंग, ओके during the reign of Sur dynasty. Sur dynasty की समय। स्पेलिंग Sur dynasty, Yeah, Sur dynasty, sir. SUR, Sur. Then dynasty, DYNASTY. इज इट ओके? जी sir. Yes, sir. Perhaps there is not any document available on this topic. ये आपने सही लिखा, सोसाइटी, कल्चर एंड एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग द सूर डायनास्टी। Sir, society, culture, and administration during the regime of Sur dynasty. हाँ, रिजियम तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, इस टॉपिक पे इस पे कोई लिटरेचर अवेलेबल नहीं है। आप कोई वैसा टॉपिक बताएं जिस पे अवेलेबल हो। Sir, evaluation of OETDs. ओके, थोड़ा जोर से बताइए। Evaluation of OETDs. Open electronic thesis and dissertation, sir. इवैल्यूएशन ऑफ OETDs. ओपन Electronic इलेक्ट्रॉनिक thesis and dissertation repositories. thesis and dissertation repositories। ठीक है, Yes, sir. Yes. ये सही है। Yes, sir. Okay, ठीक है. नो, can we do one thing? Can we remove open electronic thesis and dissertation? Jalangi River, a dying of a storytelling of a dying river. Now it is showing, it is some results। देखिए ये चीज इंपॉर्टेंट है। बाकी देखिए, ये आपको सबसे पहले याद रखना है कि दिस इज ए स्कॉलरली डेटाबेस। जैसे आप गूगल पे सर्च करते हैं वैसे ये डेटाबेस नहीं है। गूगल में यू आर गेटिंग एवरी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, लेकिन यहाँ पे इंडेक्सिंग इज इंपॉर्टेंट। यहाँ पे जो चीज इंक्लूड है वही दिखेगी। जैसे अभी सोर डायनास्टी का हमने टॉपिक डाला, तो सोर डायनास्टी अवेलेबल नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि जो कवरेज है इसकी वो सब्जेक्ट बेस्ड है। ज्यादातर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की इसमें ज्यादा जर्नल्स इंडेक्स्ड है। उसके बाद सोशल साइंस आर्ट्स में सबसे कम है, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, आर्ट्स। मैनेजमेंट के अच्छे खासे जर्नल्स हैं, मेडिकल साइंस के हैं, एग्रीकल्चर के हैं, इंजीनियरिंग के बहुत ज्यादा जर्नल्स हैं। ठीक है, ये कवरेज इसकी ऐसी है इंटरनेशनल लेवल पे कि इसकी सब्जेक्ट बेस्ड कवरेज है और हर किसी सब्जेक्ट में कुछ स्पेसिफिक ही जर्नल्स में इंडेक्स्ड है जो उसमें इंक्लूड हुई। बहरहाल मुझे जो दिखाना है आपको वो आपको याद रखना है कि अब हमने फॉर एग्जांपल कोई भी टॉपिक लिखा जिसमें रिजल्ट्स हमें मिल गए। अब 87 डॉक्यूमेंट्स हमें मिले। अब इनमें से हमें ये देखना है कि जो हम पीएचडी कर रहे हैं, जो हमारा टॉपिक है जिसमें हम इंटरेस्टेड हैं, वो कोई भी टॉपिक हो सकता है। आप ये पढ़ेंगे, ये टाइटल से आपको अंदाजा लग जाएगा कि हमारे रिलेटेड जो हम सर्च करना चाह रहे हैं वो कौन सा है।
ऐसे हम सर्च करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल रोल इन कंट्रीब्यूशन टू ओपन एक्सेस रिपोजिटरी इन द नॉर्थ ईस्ट यूनिवर्सिटी इंडिया स्टडी ऑफ शोधगंगा, ठीक है, ये मुझे लग रहा है जो इससे मिलता जुलता है। ये एनालाइजिंग द थीसिस एंड डिसर्टेशन ऑफ इम्प्लीमेंट। अब आपने इस पर क्लिक कर लिया जो आपका आर्टिकल विच इज ऑफ योर इंटरेस्ट। सब लोग देख रहे हैं ना इस चीज को? Yes, sir. अब दिस यू थिंक दैट दिस आर्टिकल इज ऑफ योर इंटरेस्ट एंड इट इज रिलेटेड टू योर स्टडी। अब आपको क्या करना है, ये आर्टिकल आपने देख लिया, इस आर्टिकल के आपको राइट साइड में जाना है जहां पे लिखा है रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, दिख रहा है? आर यू गेटिंग दिस? Yes, sir. अब आप यहां पे देखिए, एक्सप्लोरिंग द ETDs ऑन शोधगंगा। ये जो हमारा टॉपिक है, ये जो आर्टिकल हमने डिसाइड कर लिया कि ये हमारे रिलेटेड है। अब आप रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स में देखिए एग्जैक्टली मैचिंग है, जो डॉक्यूमेंट आप इंटरेस्टेड है वैसे ही डॉक्यूमेंट्स आपको मिल रहे हैं। ये अगर आप सर्च करेंगे, सर्चिंग में हो सकता है आपको ये मिले या ना मिले, लेकिन डेटाबेस पे जब आप डिपेंड रहेंगे तो डेटाबेस आपको ऑटोमेटिकली सर्च करके देगा जो उस टॉपिक पे बिल्कुल एग्जैक्टली रिलेट कर रहे हो और जो इसमें अवेलेबल है। देखिए इंप्लीमेंट है, ये शोधगंगा का है, ये भी ETDs पे है, ये भी ETDs पे है, ठीक है। तो इन द सिमिलर मैनर अगर आप इस पे क्लिक करेंगे व्यू ऑल रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स बेस्ड ऑन रेफरेंसेस, ये आपको ये तमाम डॉक्यूमेंट जो उस टॉपिक के रिलेटेड है, जो आपने एनालाइज किया है, जो आपको लगा कि ये हमारे टॉपिक के रिलेटेड है, उनको आपको ऐसे क्लिक करके व्यू ऑल रिलेटेड रिकॉर्ड्स इन्होंने दिखाया आपको। यहां तक समझ आ गया? अब उसके बाद क्या करना है आपको, यहां पे दो ऑप्शंस आपको मिलेंगे, सिलेक्ट ऑल, सिलेक्ट पेज। इसमें आपको क्या करना है, दोनों ऑप्शन आप कर सकते हैं, सिलेक्ट ऑल कर सकते हैं, 39 की 39 सिलेक्ट कर सकते हैं, और उसके बाद जब आप क्या पेज करेंगे सिलेक्ट या ऑल करेंगे सिलेक्ट, ये सब ऑप्शंस एक्टिवेट होंगे। उसमें से आप डाउनलोड कर लीजिए आर्टिकल्स को या साइटेशन डेटा पे जाइए, लेकिन हम चाह रहे हैं क्योंकि हम लिटरेचर रिव्यू करना चाह रहे हैं तो हम क्रिएट बिब्लियोग्राफी। आप HTML फॉर्मेट में ले सकते हैं, टेक्स्ट फॉर्मेट में, और आपके पास यहाँ फॉर्मेट दिया हुआ है। हम ज्यादातर APA स्टाइल यूज करते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल कोई जर्नल है, किसी जगह पे आपको आर्टिकल सबमिट करना है, वहां पे और कोई स्टाइल है, आप उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो APA स्टाइल हमने सिलेक्ट किया HTML फॉर्मेट में या टेक्स्ट फॉर्मेट में, जिसमें आप सेव करना चाहेंगे। देन क्रिएट बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी इज क्रिएटेड। जितने सारे रिलेटेड आर्टिकल्स हैं उनकी तमाम डिटेल हमारे पास आ गई। देखिए दिस इज वन वे, इसको आप सेव भी कर सकते हैं, इसको आप प्रिंट भी कर सकते हैं। जैसे हमें सेव करना है, वी आर गोइंग टू सेव इट। यहाँ पे हमारे पास फाइल क्रिएट हो गई। Now these are 1,44 results are there which have been matching with our term open access resources and ETDs. Now say for example, if we are interested in any of the topic, just like randomly I am taking ETDs and open access for research and development issues and challenges, I am clicking on that. Now this is the article, ETDs and open access for research issues and challenges. Then you can go to the full text of the article because someone has uploaded this. Now what is important for you people is
the right side of the panel. That is, if you are, more concerned about the expertise of a particular person, then you can follow the publications. You can check all the publications of that particular author. And then these are very important, like related papers. The article and their related papers, just like see, electronic thesis and dissertation, guidance document lifecycle, ETDs, ETD retrieval, service electronic thesis and dissertation. You see, all are matching. Almost maximum articles are matching with our article, which we are interested. And then you can click on that. You can go on, and the link is, linking further to you other different types of the resources. So it gives a chain type of reaction where from one article you are going from one relevant article to another relevant article. In this way, you are, getting more of your literature using the interfaces of the academia, like this one, electronic thesis and dissertation programs, a review of the critical source. Then the same thing, related papers, check all the related papers. You can check in your own fields which are of your interest. They are almost matching with the current document. Okay. Now this is the third source, that is the Web of Science. मेरे ख्याल से हो सकता है ये भी आप लोगों के अवेलेबल नहीं होगा, है ना, लेकिन फिर भी जैसे हम लिखते हैं लाइब्रेरी सर्विसेज ड्यूरिंग COVID-19, again there are many articles, like 290 articles, results, which consists of review article, early cite, then cited references, and these are other different types of these aspects like authors, publication years. We are not more interested in that. Now you see, for example, Canadian University Research Libraries during the early days of COVID-19 pandemic. We think that this is the topic which is of our interest. So you can click on that, or you can go to the related records here. Related records. You will see the articles which are related. And you can click on that. You can export them, email them. Okay. You can mark them as, if you have login there by using your username and password, then you can add to marker list. Then you can download them, just like in case of Scopus database, जिसमें हमारे पास वो PDF डाउनलोड हो गया था रेफरेंसेस का. सिमिलरली आप इसमें भी रेफरेंसेस इन जो रिलेटेड आर्टिकल्स हैं उनकी डाउनलोड कर सकते हैं, because bibliography is itself a source whereby you are getting at least the information what is the amount of literature which is being published. उसके बाद एक एक आर्टिकल आप सर्च करेंगे, चाहे आपके पास अवेलेबल है या कहीं से आप अवेलेबल कराएंगे. हमारे पास बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स में हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स भी हैं, या कुछ एकेडमिया के अलावा भी हमारे पास ऐसा नेटवर्क है जहां पे हम लोग मेल के जरिए आर्टिकल्स एक दूसरे से शेयर करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लाइब्रेरीज में हर कोई कंटेंट अवेलेबल नहीं हो सकता. तो अगर आपके उस आर्टिकल की बिब्लियोग्राफिकल डिटेल है तो वो दूसरे यूनिवर्सिटी में अवेलेबल है, वहां से वो फुल टेक्स्ट शेयर कर सकते हैं. सो गेटिंग द इंफॉर्मेशन व्हाट इज अवेलेबल is again very important thing for the literature review. Okay, so there are many resources. I think that because of the constraint of the time, in our university we have Science Direct also, we have Emerald Insight, we have JGate, we have almost all the major databases in our university. So next time, if we can get more time, so that I'll be giving further demonstration about the citations, about these particular databases, how we are going to search the literature. Okay, so let us go. If you have any questions or clarifications, then we can close the session. Someone is asking that if how we are going to get the problem of cloned journals.
and then the journal WhatsApp from you. The first one, colonial journals. The most important source in our country is the UGC Care List that you all might be knowing. And along with that, we are mostly, telling our research scholars to publish their articles mostly in the Web of Science Scopus based journals, because they are a little bit, quality control journals. Now, when we talk about the colonial journals, the first identification of those colonial journals is the paid publications. If the publication is saying you that you have to pay something, it is, the first indication that, because all the good publishers, reputed publishers in the world, they are publishing free of cost. You don't have to pay anything. Once you are paying, that means there is something fishy. And then the quality of the articles that the journal is publishing. You can go to the archive of that particular journal. You can check the, articles, and you can check the review system. Sometimes if you are sending an article and then within 1 week, they are giving you the acceptance letter, then it is not possible that the journal is, a quality journal. There should be a proper review system, peer review process. Sometimes double peer review systems are there in some of the good journals. So peer review system, frequency of publication, acceptance rate, payments which are being made, the quality of the publications in the archive. These are some factors whereby we are identifying the colonial journals. And WhatsApp, because we are a central university, and in the northern India, JNU, DU, IIT Delhi, Aligarh Muslim University, Allahabad, and there are fewer universities where the librarians are having the network in the WhatsApp form and the email grouping, and they are helping out the research scholars. If any research scholar is having any article and they are having the details of that article, and if it is available in any of these 5 or 10 libraries, they try to provide the full text of the article. Similarly, in our, Aligarh Muslim University, we have a WhatsApp group where many research scholars are sending their articles through the library staff. They are giving the bibliographical details, and we are trying to contact the, near possible central university libraries. If the article is available, we are providing them. So that is our way of doing and helping our researchers. It's really helpful, sir. If anyone please have any last question we're going through. कोई question है तो you can ask also. Sir, Yes. just Yes, a matter of curiosity. Is there anything like what should be the length of literature review? Like how many pages or how many No, there is not any articles or standard. books we should include? No, there There is is not nothing any like standard. that, no? There is not any standard. It depends upon if you are writing a review for your thesis, supervisor is going to judge you. And if you are writing a review article in a journal, then the journal editors are going to decide the number of pages and number of words. There is no proper standard for thesis, for dissertation, for the research article. It depends. Okay. Okay. Thank you, sir. Thank you. Yes, Tausif, you can go further. Thank you, Tausif. Thank you. So nice of you. It has been nice to have an interaction with all of you. I can see some of the students. Tariqul Islam is also there. Irfan, my student, is also there. Shamim, and I thank each one of you to be, as inviting me for the session. And I hope that hope will be more, brighter in future. Yeah, I think we'll get you with us and we'll be getting more time from you in future, obviously, sir. So thank you all.